So students, now we will discuss about antepartum hemorrhage. तो एंटीपार्टम हेमोरेज का मतलब क्या होता है? कोई भी ब्लीडिंग जो कि लेट प्रेगनेंसी में हो उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीपार्टम हेमोरेज. ओके, सो हाउ यू गोना डिफाइन दिस एंटीपार्टम हेमोरेज? सो हाउ टू डिफाइन? So antepartum hemorrhage is any bleeding from or into genital tract beyond the period of viability. ठीक है. So antepartum hemorrhage को आप कैसे define करोगे? So any bleeding from or into genital tract after the period of viability. और पीरियड ऑफ वायबिलिटी कितना होता है? दिस इज अराउंड 28 वीक्स. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस कि पीरियड ऑफ वायबिलिटी mainly in India we consider it as after 28 weeks of gestation. Okay, now what is the cause of ये लेट प्रेगनेंसी ब्लीडिंग क्यों होती है? उसके कॉजेज हम देखेंगे क्या क्या होते हैं. So let's discuss about the causes. So the first cause here is what? First cause is abruption, placenta abruption. Placenta abruption. And placenta abruption is the most common cause. So it is what? It is the most common cause of late pregnancy bleeding. After placenta abruption, the next cause of this antepartum hemorrhage is what? That is placenta previa. Placenta previa. Okay, this is the second most common cause of antepartum hemorrhage. After placenta previa, the next cause of antepartum hemorrhage is that is uterine rupture. Uterine rupture. This uterine rupture, it is not, obviously it is not the most common cause. It is very uncommon for APH, but it is most common thing that can happen during labor. So this is uncommon for antepartum hemorrhage, but it is what? It is most common. It is most commonly happen during labor. Okay. After uterine rupture, the next cause for APH is what? That is vasa previa. That is what? Vasa previa. And it is a rare cause. Got it? So what are the causes? First is a placenta abruptio. This is a most common cause of antepartum hemorrhage. Second is placenta previa. So basically आपने ये दो causes याद रखने हैं. ठीक है? Now let's discuss about what is placenta abruptio and what is placenta previa. So let's discuss about them. Placenta previa and placenta abruption. So placenta previa क्या है? Placenta previa को आप कैसे define करोगे? So when the placenta
is present over the internal os, we called it as placenta previa. Now usually क्या होता है, ये अगर हमारी यूट्रस है, this is the uterus, this is the vagina, here is the cervix. ठीक है, सर्विक्स के पास क्या होता है, इंटरनल ऑस, ये है हमारा बेसिकली इंटरनल ऑस. सो हियर इंटरनल ऑस इज देयर. ओके, नॉर्मली क्या होगा, ये जो प्लेसेंटा होता है ना, ये पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है और इट इज मेनली अवे फ्रॉम द इंटरनल ऑस. ठीक है, 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस होता है इसका इंटरनल ऑस से नॉर्मली. नाउ इफ दिस इज अ प्लेसेंटा एंड हियर इज द फीटस, ओके, और ये आपकी है क्या, अम्बिलिकल कॉर्ड. नॉर्मली दिस इज अ सिनेरियो. ओके, नाउ in case of placenta previa, what happens is, here is the baby, so here is the fetus. Okay, अब जो प्लेसेंटा होगा ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, बेसिकली इट इज प्रेजेंट ओवर द इंटरनल ऑस. लाइक ऐसे होगा, ये बिल्कुल ही इंटरनल ऑस के साथ चिपका हुआ. यू कांट से चिपका हुआ, बट या इट इज़ वेरी नियर टू इंटरनल ऑस, और इसकी हम क्लासिफिकेशन भी देखेंगे बाद में. सो बेसिकली दिस प्लेसेंटा, इसको होना तो इंटरनल ऑस से 2 सेंटीमीटर का ज़्यादा डिस्टेंस चाहिए था इस प्लेसेंटा का, बट ये अभी बिल्कुल इंटरनल ऑस के ऊपर है. तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा previa. So just write down the definition. Placenta lying over the internal os is placenta previa. Okay. Now what is placental abruptio? So see, if this is the uterus, ठीक है, ये यूट्रस है, वजाइना, हियर इज द सर्विक्स एंड हियर इज योर प्लेसेंटा. सो ये है हमारा प्लेसेंटा. ठीक है, दिस इज द fetus, which is the connection between fetus and placenta is umbilical cord. Now abruption के केस में क्या होगा, वैसे प्लेसेंटा कब सेपरेट होता है, बेसिकली जब लेबर की 3rd स्टेज होती है तब प्लेसेंटल सेपरेशन होता है. ठीक है, ये आपको पता है. बट अगर प्लेसेंटा की सेपरेशन पहले हो जाए, या तो टर्म से पहले या लेबर से पहले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट एज एब्रप्शियो प्लेसेंटा. सो बेसिकली एब्रप्शियो प्लेसेंटा क्या है, दैट इज प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा. सो इस केस में क्या होगा, ये हमारा प्लेसेंटा है, तो ये पहले ही ऐसे डिटैच होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, देयर इज अ डिटैचमेंट of placenta from the decidua. Decidua क्या है, it is a endometrium और प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम इसको बोलते हैं. तो ऐसे प्लेसेंटा यहाँ से सेपरेट हो गया. तो क्या होगा, जब प्लेसेंटा सेपरेट होगा ना, तो ब्लीडिंग भी होगी. ठीक है, तो यहाँ पे ब्लीडिंग भी एक कॉमन पेन सिम्टम होता है. ठीक है, सो व्हाट इज this abruptio placenta? So just write here, this is premature separation of placenta. Okay,
और यहाँ पे आप लिख लो प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली लोकेटेड प्लेसेंटा। लोकेशन इस प्लेसेंटा की नॉर्मली ही है, बट ये पहले ही सेपरेट हो गया। बट अगर प्लेसेंटा प्रीविया की बात करें, यहाँ पे प्लेसेंटा की लोकेशन ही एबनॉर्मल है। गॉट इट? सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रीविया एंड अब्रप्शो। नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ प्रीविया? So let's discuss first about the causes of placenta previa. Causes of placenta previa. Now what is the cause of placenta previa? Now see, if uterine contraction starts or if there is any cervical changes, so what will happen? There is some shearing force on placenta, and this shearing force on placenta will leads to what? Will leads to ब्लीडिंग। एंड बेसिकली ये जो ब्लड होगा ना, ये कौन सा होगा? मैटरनल ब्लड होगा फ्रॉम द इंटरविलस स्पेस। सो जस्ट राइट, सो व्हाट इज द कॉज? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और सर्विकल चेंजेस। These two things leads to what? Shearing force on placenta. This will apply a shearing force on placenta, and this will leads to what? This will leads to bleeding. और ये जो ब्लीड हो रहा है बेसिकली ये मैटरनल ब्लड है, मैटरनल blood from intervillous space, from intervillus space. Got it? So this is the first cause, uterine contraction and or any changes in the cervix. Now what is the cause of placenta abruptio? So इसमें cause of bleeding क्या है? So more appropriate is just write cause of bleeding. Now let's discuss about cause of bleeding in placenta abruptio or placenta abruption. So the main cause of this bleeding in placenta abruptio is what? When there is a rupture of blood vessels, जब प्लेसेंटा दूर हो रहा होगा डेसिडुआ से, तो क्या होगा? ब्लड वेसल्स होती हैं कुछ, वो ब्लड वेसल्स का क्या हो जाएगा? रप्चर हो जाएगा। ठीक है? सो रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स इन डेसिडुआ बेसालिस, इन डेसिडुआ बेसालिस। ठीक है? और उसके बाद क्या होगा? वो जो ब्लड है ना वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है? जो कि फर्दर और स्प्लिटिंग करा देगा। सो एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड स्प्लिट्स डेसिडुआ, एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड स्प्लिट्स डेसिडुआ। और जब ये ब्लड एक्यूमुलेशन की वजह से स्प्लिटिंग होगी ना, तो ये कब तक होती रहेगी? ये तब तक होती रहेगी स्प्लिटिंग जब तक ये पूरा प्लेसेंटा सेपरेट ना हो जाए। ठीक है? सो कंटिन्यू, द स्प्लिटिंग विल कंटिन्यू until entire placenta separates. ओके? सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जैसे ये आपका प्लेसेंटा है, हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था प्लेसेंटा। ठीक है? तो जब ये प्लेसेंटा ऐसे सेपरेट होगा ना, when this placenta will separate, तो क्या होगा? यहाँ पे ना ब्लीडिंग होगी।
ऐसे यहाँ से ये प्लेसेंटा निकल गया ना, ऐसे सेपरेशन हुई है इसकी, तो यू विल सी कि यहाँ पे जो ब्लड है ना, सेपरेशन वाला जो ब्लड वेसल के रप्चर से हुआ वो एक्यूमुलेट होता रहेगा, और जब वो एक्यूमुलेट होता रहेगा तो वो क्या करेगा, यहाँ से फिर से सेपरेशन शुरू हो जाएगी। अगेन जो अटैच्ड प्लेसेंटा है ना वो भी सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये तब तक होगा जब तक पूरा प्लेसेंटा डिटैच नहीं हो जाता, ठीक है। नाउ गॉट इट। अब जो डेसिडुआ है ना, जब वो सेपरेट होगा तो डेसिडुआ क्या रिलीज करेगा, सो व्हेन डेसिडुआ सेपरेट इट विल रिलीजेस टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। सो डेसिडुआ रिलीजेस व्हाट, इट विल रिलीज टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। ये टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज कराएगा डेसिडुआ। अब ये जो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ है डेसिडुआ से, ये क्या करवाएगा, दिस विल इनिशिएट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, इट विल इनिशिएट्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कराएगा। और आपको पता है ये टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ना, ये कैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस क्यों इनिशिएट करा रहा है, बिकॉज इट इज़ अ पोटेंट यूट्रोटॉनिक, ठीक है। ये क्या है, पोटेंट यूट्रोटॉनिक एजेंट है, पोटेंट यूटेरोटॉनिक, इसीलिए इसने क्या किया, इनिशिएट कराई यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। अब दूसरा क्या होगा, ये टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन सेकेंडली ये क्या करेगा, दिस विल ऑल्सो इनिशिएट्स DIC. What is DIC? That is disseminated intravascular coagulation. So it will initiate disseminated intravascular coagulation, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या फंक्शन करेगा ये टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, थर्ड इट विल इनिशिएट द रिलीज ऑफ मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीएसेस, मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीएसेस। सो मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेसेस जब ज़्यादा रिलीज होंगे तो ये क्या करेंगे, दिस मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीएसेस विल लीड्स टू टिश्यू नेक्रोसिस, टिश्यू की नेक्रोसिस करा देंगे, और फाइनली क्या होगा, टिश्यू नेक्रोसिस से और ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, सो मोर ब्लीडिंग विल बी देयर। सो मेन कल्प्रिट यहाँ पे कौन है, ये टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, गॉट इट। सो ये डेसिडुआ से रिलीज होता है, इट इज़ अ पोटेंट यूट्रोटॉनिक एजेंट, it initiates uterine contraction, second it initiates disseminated intravascular coagulation, and third it also initiate the release of matrix metalloproteinases जो कि क्या कराएंगे, टिश्यू नेक्रोसिस, एंड फाइनली और ज़्यादा ब्लीड होगा। नेक्स्ट थिंग दैट विल हैपन हियर, सेकेंड इज functional withdrawal of progesterone. So functional withdrawal हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन का। अभी फंक्शनल विड्रॉल से क्या होगा, ये फंक्शनल विड्रॉल जब होगा प्रोजेस्टेरोन का तो उससे क्या होगा, ज़्यादा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होंगी, देयर विल बी मोर यूट्राइन, सो ज़्यादा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होगी तो ज़्यादा सीवियरिटी हो जाएगी। नाउ एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि फंक्शनल विड्रॉल क्यों होगा प्रोजेस्टेरोन का। सी बेसिकली क्या होगा, जब प्लेसेंटा सेपरेट होगा
तो ऑब्वियसली ब्लड सप्लाई भी तो इफेक्ट होगी उसको। और आपको पता है जब ये सेपरेशन होगी, ब्लड सप्लाई इफेक्टेड होगी, तो ये हॉर्मोन्स भी धीरे धीरे इनका लेवल विड्रॉ होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए यू गोना सी दिस विड्रॉल ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड फाइनली देयर इज अ इनिशिएशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। जो सेपरेशन है ना प्लेसेंटा की, दिस विल कॉज व्हाट, दिस विल कॉज फीटल डिस्ट्रेस। ऑब्वियसली जब प्लेसेंटा सेपरेट कर गया तो बेबी को न्यूट्रिशन कैसे सप्लाई होगी, कुछ भी तो नहीं होगा। प्लेसेंटा इज अ मेन ऑर्गन दैट मैनेज ऑल द न्यूट्रिएंट सप्लाई एंड ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन सप्लाई। सो अगर प्लेसेंटा ही सेपरेट हो गया और पहले ही सेपरेट हो गया तो क्या होगा, देयर विल बी फीटल डिस्ट्रेस। सो जस्ट राइट हियर separation of placenta, separation of placenta will leads to fetal distress। ठीक है, fetal distress कॉज करेगा। Now let's discuss about the risk factors here. So next is the risk factors. So risk factors of placenta previa and placenta abruptio discuss करेंगे हम। placenta previa and placenta abruption। okay, so first risk factor for placenta previa is what, if there is a history of previous placenta previa। previous history of placenta previa। अगर previous history है तो recurrence rate बढ़ जाता है, और कितना बढ़ता है, so recurrence rate increases, so 3 to 8% रिस्क और बढ़ जाएगा अगर प्रीवियस प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा प्रीविया की हिस्ट्री हो। नाउ द सेकेंड फैक्टर इज दैट इज मल्टी फीटल प्रेगनेंसी। दैट इज व्हाट, मल्टी फीटल प्रेगनेंसी। The third risk factor for placenta previa is if there is a previous history of C-section। ठीक है, अगर इसको पिछली डिलीवरी में भी C-section हुआ था तो चांसेस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया और बढ़ जाएगा। ठीक है, सो आपने क्या किया, आपने लेवल 2 स्कैन किया इसका, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड जो होता है वो आपने किया। ठीक है, और जब आपने लेवल 2 किया आपको क्या मिला कि जो प्लेसेंटा था ना, प्लेसेंटा जो था वो लोअर पार्ट में प्रेजेंट था। ठीक है, मे बी एट लोअर पोल और यू कैन से लोअर पार्ट। ठीक है, आफ्टर दैट सेकेंड जब अल्ट्रासाउंड आपने की, आपको जो प्लेसेंटा है उसकी पोजीशन लोअर पार्ट पे मिली। देन आपने क्या किया, फॉलो अप अल्ट्रासाउंड की आपने। ठीक है, जब आपने फॉलो अप अल्ट्रासाउंड की तो बाद में क्या हुआ कि जो प्लेसेंटा था वो माइग्रेट कर गया। मे बी हो सकता है आफ्टर सम टाइम तो वो एंड महीने तक आते आते अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए। So after doing all these follow-up you have did, so placenta migrates, placenta migrate कर गया। ठीक है, due to what, due to differential growth of uterus। और ये क्यों हुआ, due to differential
ग्रोथ ऑफ यूट्रस, ठीक है, गॉट इट। बट अगर किसी पेशेंट में प्रीवियस सी सेक्शन हुआ है, अगर आपके पास इफ पेशेंट हैज़ हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सी सेक्शन, प्रीवियस सी सेक्शन की हिस्ट्री है आपके पेशेंट में, ठीक है, तो क्या होगा, तो स्कार टिश्यू प्रेजेंट होगा, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस सी सेक्शन हुआ है, तो सी सेक्शन जब होता है तो ऑब्वियसली देयर विल बी स्कार फॉर्मेशन, स्कार टिश्यू होगा, क्योंकि हमने वो कट जो लगा है उसको बॉडी रिपेयर करने की कोशिश करेगी। सो स्कार टिश्यू क्या होगा इस केस में, इट विल बी प्रेजेंट, ओके। सो स्कार टिश्यू अगर प्रेजेंट है तो जस्ट रिमेंबर जो प्लेसेंटा की माइग्रेशन के जो चांसेस है ना वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। सो माइग्रेशन ऑफ प्लेसेंटा विल बी एब्सेंट, माइग्रेशन ऑफ प्लेसेंटा इज एब्सेंट, ठीक है, एब्सेंट होंगे, गॉट इट। सो आपने अगर प्रीवियस हिस्ट्री है, आप लेवल 2 अल्ट्रासाउंड करोगे, अगर प्लेसेंटा लोअर पोजीशन में है देन आपने रेगुलर फॉलोअप रखना है अल्ट्रासाउंड के लिए, और प्लेसेंटा बाद में एट द एंड तक आते आते प्लेसेंटा माइग्रेट कर जाएगा। बट अगर किसी पेशेंट में प्रीवियस हिस्ट्री है सी सेक्शन की, तो उस केस में क्या होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ स्कार टिश्यू एंड migration of placenta does not occur here, okay. So just remember this short note, so just make a note, more is the number of C-section, higher is the risk for placenta previa. So more number of C-section will leads to what, will leads to higher the risk, okay. So just remember this, okay, number of C section कितने होंगे उतना ही रिस्क बढ़ जाएगा स्कार का, रिपीट, उतना ही रिस्क बढ़ जाएगा प्लेसेंटा प्रीविया का। Now after this C section, the next risk factor for placenta previa is what, increase of age. Fifth risk factor is increase of age, increase of parity, and sixth one is what, that is smoking. So ये सारे जो हैं रिस्क फैक्टर कॉमन है, ज़्यादा एज का होना, ज़्यादा पैरिटी का होना और स्मोकिंग का होना। सो आफ्टर स्मोकिंग the next risk factor is what, that is Mullerian anomalies, Mullerian anomalies. Eighth risk factor for this is if there is a history of curettage or if there is a history of medical termination of pregnancy, then the risk factor of placenta previa is there. So history of curettage or history of MTP. After this, the next risk factor is previous uterine surgery, previous uterine surgeries. So these are the risk factor for what, for placenta previa. So again हमने क्या क्या डिस्कस किया, first is the previous history of placenta previa, after that multifetal pregnancy, after that previous C-section, previous history of curettage, previous history of MTP, increased age, increased parity, smoking, Mullerian anomalies, and previous uterine surgery. So these are the risk factors. So the next risk factor for placenta abruption is what? So the first one is, that is previous history of abruption. Previous
history of abruption. So if there is a previous history for abruption, so the risk of recurrence, it will be what? It will increase more than that we have discussed in placenta previa. So what are the recurrence risk? It is around 15%. 15% बढ़ जाती है recurrence risk अगर previous placenta abruption हो इस female में तो. Second risk factor for placenta abruption is what? Preeclampsia. Preeclampsia. Okay? Preeclampsia क्या है? If the BP is more than 140 by 19 mmHg with proteinuria or end organ damage, we consider it as what? Preeclampsia. Third one is trauma to uterus. Trauma to uterus can lead to separation of placenta. After that, fourth one is polyhydramnios. Polyhydramnios can also lead to placental separation. Next is PROM, that is what? Premature rupture of membrane. This is premature rupture of membrane. Okay. And next risk factor here is what? That is fibroid uterus. Fibroid uterus. Seventh risk factor is increase of age. Eighth is increased parity. And ninth is what? That is smoking. Okay. तो ये आपने याद रखते हैं. एज, पैरिटी और स्मोकिंग ये तो कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं प्रीविया और एब्रप्शन में. ठीक है. नेक्स्ट जस्ट मेक अ नोट, जो स्मोकिंग है हमने क्या पढ़ा था? अगर आपको याद हो, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में वी हैव स्टडीड दैट स्मोकिंग इज व्हाट? स्मोकिंग इज अ प्रोटेक्टिव फैक्टर फॉर प्रीएक्लेम्पसिया. So what we have said, smoking is what? It is a protective factor. Factor for what? Factor for preeclampsia. ठीक है. बट आपने याद रखना है, जो प्लेसेंटा प्रीविया है ना, उसकी नेगेटिव एसोसिएशन है प्रीएक्लेम्पसिया के साथ. सेकेंड नोट क्या याद रखना है आपने? कि प्लेसेंटा प्रीविया हैज नेगेटिव एसोसिएशन विद pre-eclampsia. Got it? So just remember these 2 points, okay? Now let's discuss about the presentation, how a patient gonna present at your clinics. So next we're gonna discuss about presentation. सो पेशेंट आपके पास कैसे आएगा अगर उसको प्लेसेंटा प्रीविया है? तो फर्स्ट मोस्ट कॉमन जो प्रेजेंटेशन होगी प्लेसेंटा प्रीविया में, दैट विल बी यूट्राइन ब्लीडिंग. दैट विल बी व्हाट? यूट्राइन ब्लीडिंग. और ये जो यूट्राइन ब्लीडिंग होगी ना, दिस विल अकर इन द थर्ड ट्राइमेस्टर. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि ये जो ब्लीडिंग लेट ट्राइमेस्टर में होती है, दैट आर व्हाट? दैट इज एंटीपार्टम हेमोरेज. तो प्लेसेंटा प्रीविया का कॉज क्या है? एंटीपार्टम हेमोरेज. और इसमें जो यूट्राइन ब्लीडिंग है जनरली लेट ट्राइमेस्टर में हो रही है, लेट प्रेगनेंसी ब्लीड है, मेनली थर्ड ट्राइमेस्टर. नाउ सेम अगर हम
प्लेसेंटा अब्रप्शन की बात करें तो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या होगी, दैट इज यूट्राइन ब्लीडिंग होगी। ओके और ये भी कब होगी, थर्ड ट्राइमेस्टर में होगी, मोस्टली थर्ड ट्राइमेस्टर यूट्राइन ब्लीडिंग। नाउ अभी इनमें डिफरेंस क्या होगा, सी ये जो ब्लीडिंग होगी इन केस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया दिस विल बी पेनलेस, ठीक है। और अगर हम बात करें प्लेसेंटा अब्रप्शन की तो दिस इज एसोसिएटेड विथ पेन, ओके। नाउ सेकेंड, दिस ब्लीडिंग विल बी कॉजलेस, हमें नहीं पता कि क्यों हो रही है, कोई कॉज भी नहीं है, यहाँ पे कोई कॉज भी नहीं है, ठीक है। थर्ड इज व्हाट, दिस ब्लीडिंग विल बी ब्राइट रेड इन कलर, ठीक है, ब्राइट रेड कलर की होगी ये, ब्राइट रेड कलर ब्लीड, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें प्लेसेंटा अब्रप्शन के केस में तो हियर यू विल सी फर्स्ट तो ये पेन के साथ एसोसिएटेड होगा और इसमें क्या, देयर विल बी प्रीसीडिंग इवेंट्स, ठीक है, लाइक प्री इक्लैम्सिया होगा, प्री इक्लैम्सिया के साथ एसोसिएटेड होगा ये, और आफ्टर दिस ट्रॉमा के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, ट्रॉमा के बाद हुआ ये, और तीसरा दिस कैन अकर आफ्टर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ओके। एंड यहाँ पे जो ब्लीडिंग होगी ना बेसिकली प्लेसेंटा अब्रप्शन में, दिस विल बी ऑफ डार्क ऑल्टर्ड इन कलर, दिस विल बी डार्क ऑल्टर्ड, और ये जो डार्क कलर है ना दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, ओके। और अगर पेन का रीज़न कोई पूछे, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर पेन, रीज़न फॉर पेन क्या है इन केस ऑफ प्लेसेंटा अब्रप्शन, so what is the reason for pain, that is the reason of pain is due to tissue थ्रोम्बोप्लास्टिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन की वजह से पेन होती है। क्यों होगी टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन की वजह से पेन, क्योंकि टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन एक पोटेंट यूट्रोटॉनिक है, दिस इज व्हाट, इट इज अ पोटेंट यूट्रोटॉनिक। अगर ये पोटेंट यूट्रोटॉनिक है तो ये क्या कराएगा, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस कराएगा, और जब कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं तो क्या होगा, पेन होगी, पेशेंट विल एक्सपीरियंस पेन, ओके। नाउ ये डार्क कलर भी किसकी वजह से है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन की वजह से है। सो समटाइम्स क्या होगा, ये जो ब्लीडिंग है बेसिकली ये क्या है, रेट्रोप्लेसेंटल ब्लीड है। सो सी इफ दिस इज अ यूट्रस, ठीक है, और ये है आपका प्लेसेंटा, दिस इज व्हाट, दिस इज द प्लेसेंटा, ठीक है। तो ये प्लेसेंटा सेपरेशन हुई, तो कई बार क्या होता है, ये जो ब्लीडिंग होती है ना बेसिकली दिस इज रेट्रोप्लेसेंटल ब्लीड, और कई बार ये जो रेट्रोप्लेसेंटल ब्लीड है ना ये ऐसे सिरोसा तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे जब ये सिरोसा पे गया तो ये क्या हुआ, सारी यूट्रस जो है, यू विल एप्रिशिएट पूरी यूट्रस का कलर कैसा हो जाता है, वाइन शेड, हम इसको क्या बोलते हैं, वाइन कलर्ड यूट्रस। इसका पर्टिकुलर नाम हमने क्या दिया है इसको, कोविलियर यूट्रस और यूट्रोप्लेसेंट कट, रिपीट, कोविलियर यूट्रस और यूट्रोप्लेसेंटल एपोप्लेक्सी बोलते हैं हम इसे। सो जस्ट राइट हियर
sometime retroplacental bleed will reach till serosa, ठीक है, serosa तक जाएगा, and this will give what? Wine color to uterus. It will leads to wine colored uterus, ठीक है, and we called it as uterine apoplexy or curvilinear uterus. So can you see this image? तो यहाँ पे आप मुझे लगता है क्लियरली अप्रिशिएट कर सकते हो, जो यूट्रस का कलर है वो कैसा हो गया, वाइन जैसा, ठीक है, रेड वाइन जैसी होती है वैसा कलर हो गया है, तो इसीलिए दिस यूट्रस इज कॉल्ड एज curvilinear uterus. Okay, got it? This is basically when the retroplacental blood reaches the serosa, this will give this color to the uterus. So now next talk about the what are the examination finding you will get in case of placenta previa and abruption. So if we talk on examination, what you will get? Examination. So in case of placenta previa, when you do the examination and you will check the BP of this patient, so यहाँ पे patient का BP क्या होगा, normal होगा या फिर this patient will be hypotensive, normal या hypotensive होगा ये patient, ठीक है. Hypotensive क्यों होगा? Due to blood loss. This patient will be hypotensive due to blood loss. Okay? और अगर हम यहाँ पे बीपी देखेंगे पेशेंट का इन केस ऑफ प्लेसेंटा अब्रप्शन, तो बीपी क्या होगा यहाँ पे, ब्लीडिंग तो यहाँ पे भी हो रही है, देखो अब्रप्शन में भी ब्लीडिंग है और प्रीविया में भी ब्लीड है, पर जब हम अब्रप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो बीपी है वो क्या है, दिस इज हाई. क्यों अभी बीपी क्यों हाई है? बिकॉज प्लेसेंटा अब्रप्शो हैव एसोसिएशन विद व्हाट, विद प्री इक्लैम्सिया. सो जस्ट राइट इट डाउन. ड्यू टू पॉजिटिव एसोसिएशन with what, with pre-eclampsia. Okay, इसीलिए प्लेसेंटा अब्रप्शन में इवन तो द ब्लीडिंग इज देयर, बट यहाँ पे बीपी क्या आएगा, हाई आएगा. नाउ जब आप पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करोगे प्लेसेंटा प्रीविया के पेशेंट के केस में, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यू विल क्लियरली अप्रिशिएट जो फंडल हाइट होगी इस पेशेंट में, जो फंडल हाइट है दैट विल बी लेस और मोर, दैट विल बी लेस देन द पीरियड ऑफ जेस्टेशन. ओके, क्यों इसमें फंडल हाइट लेस क्यों होगी पीरियड ऑफ जेस्टेशन से? सी दिस प्लेसेंटा प्रीविया जो होता है ना, it has strong association with the transverse line. ठीक है, so just write in case of placenta previa the fundal height is less than the period of gestation because placenta previa has strong association with what, with the transverse line. Just highlight this. It has strong association with transverse line. Okay. सी अभी आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि फंडल हाइट कैसे कम है, ट्रांसफर्स लाई से एसोसिएशन है तो फंडल हाइट कैसे कम होगी.
तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, बट स्टिल अगेन आई विल डिस्कस फॉर यू गाइज. अगर ये यूट्रस है, लाइक क्या होती है बेसिकली, इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग एक्सेस ऑफ मदर टू लॉन्ग एक्सेस ऑफ फीटस. तो ये मदर की लॉन्ग एक्सेस है जो मैंने ब्लैक में ड्रॉ की है. ठीक है. नाउ हियर इज द बेबी. ये ग्रीन कलर में क्या है, ये है हमारा, दिस इज आवर बेबी. ठीक है, ये बेबी है. अब अगर मैं बेबी की स्पाइन ड्रॉ करूं तो बेबी की स्पाइन ऐसे है. ठीक है. नाउ इफ समवन आस्क यू कि इन दोनों का रिलेशन क्या है, तो 90 डिग्री है. दिस इज क्लियर. नाउ सी, अगर बच्चा ट्रांसवर्स पोजीशन में है, इफ द बेबी इज इन ट्रांसवर्स पोजीशन, तो फंडल हाइट तो ऑब्वियसली कम होगी. अगर आप तकिए को ऐसे रखोगे तो हाइट ज़्यादा होगी, बट अगर आप पिलो को ऐसे रख दोगे तो हाइट कम हो जाती है. सेम वे में यहाँ भी है. पर अगर बेबी एकदम स्ट्रेट पड़ा है यूट्रस में तो क्या होगा, दैट विल बी व्हाट, तो फंडल हाइट इंक्रीज हो जाएगी. तो गॉट इट, व्हाई द फंडल हाइट इज लेस देन पीओजी इन प्लेसेंटा प्रीविया. नाउ नेक्स्ट, when you do the per abdominal examination here, the next finding that you gonna get is what, that is the uterus will be relaxed. Uterus is relaxed. It is non-tender, non-tense. So it is what, non-tender or non-tense. Okay. Now if we talk about per abdominal examination of placenta abruptio, तो हमें क्या मिलेगा. So first when you are going to do per abdominal examination, तो आप यहाँ पे देखोगे जो फंडल हाइट है ना, फंडल हाइट that is more than period of gestation. Okay. Then second finding that you're gonna get on per abdominal examination. So यहाँ पे आप per abdominal exam जब करोगे ना, तो you will find जो abdomen है वो tense है और tenderness भी है. तो यहाँ पे भी हमने बोला जो एब्डोमेन है वो रिलैक्स्ड, नॉन टेंडर और नॉन टेंस है. सो यहाँ पे जस्ट राइट इट, इट इज एब्डोमेन. ओके. नाउ जो थर्ड फाइंडिंग आपको प्लेसेंटा अब्रप्टियो में देखने को मिलेगी ना, जब आप पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करोगे, तो मे बी जो फीटल पार्ट्स हैं, you were not able to palpate the fetal parts. So just write it, fetal parts are not palpated. They are not palpated on per abdominal examination. So the fourth finding you gonna get here on per abdominal examination, that is what, the fetal heart sound may not be audible to you, may not be audible. Okay. Now अगर हम fetal heart rate की बात करें, so यहाँ पे क्या होगा, in case of placenta abruption, so fetal heart rate जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा fetal distress, तो heart rate हो जाएगा कम. So fetal distress is more common in what case? In placenta abruptio. Okay. और अगर हम fetal heart rate की बात करें in case of placenta previa, so because of the एक्सेसिव ब्लड लॉस, यहाँ पे भी क्या होगा, फीटल हार्ट रेट कम होगी और क्या होगा, फीटल डिस्ट्रेस होगा. बट एब्रप्शन के केस में ज़्यादा डिस्ट्रेस होगा एज कंपेयर टू प्रीविया. सो जस्ट राइट इट,
if excessive blood loss is there, होगा तो what will happen? There will be fetal distress. Okay. Now, when you do per speculum examination, तो आपको क्या findings देखने को मिलेगी? So अगर हम बात करें per speculum examination की, in case of placenta previa और abruption, तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, आपने कभी भी इन दोनों केसेस में पीवी या पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन नहीं करनी. सो जस्ट मेक अ नोट हियर. सो जस्ट मेक अ नोट. Per speculum examination and PV examination is not to be done until we rule out the placenta previa or placenta abruptio. Or you can do this in a OT setup. Don't do this without OT setup, okay? So PN and PV examination is not done in placenta previa and placenta abruptio. ओके क्योंकि जब आप प्लेसेंटा प्रीविया या अब्रप्शन के केस में पीवी करने की कोशिश करोगे ना, तो आप और ज़्यादा, अगर प्लेसेंटा अब्रप्शन के केस में पीवी करोगे तो आप क्या करोगे, और ज़्यादा प्लेसेंटा को सेपरेट कर दोगे, और प्रीविया के केस में भी आप उसकी कंडीशन को और वर्स कर रहे हो. तो नेवर डू पीएस और पीवी इन केस ऑफ बोथ. ओके, सो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट what are the findings you gonna get on transabdominal ultrasound. So एंटीपार्टम हेमोरेज के साथ कोई फीमेल आपके पास आई तो आप क्या करोगे, यू विल डू ट्रांसएब्डोमिनल सोनोग्राफी. ठीक है, जब आप ट्रांसएब्डोमिनल सोनोग्राफी करोगे तो व्हाट फाइंडिंग यू विल गेट इन प्रीविया एंड अब्रप्शन. सो लेट्स डिस्कस. प्लेसेंटा प्रीविया के केस में जब आप ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करोगे ना, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जो प्लेसेंटा है दैट विल बी लाइंग ओवर द ऑस. ठीक है, सो जस्ट राइट प्लेसेंटा इज लाइंग ओवर इंटरनल os, or you can say it is lying over the lower part of the uterus, or it is lying over lower part of uterus. तो ये जो इमेज मैंने आपको बना के दिखाई थी ना, दिस वन इन द स्टार्टिंग, बेसिकली ऐसा कुछ देखने को मिलेगा आपको. ठीक है, या तो ये प्लेसेंटा ऑस के ऊपर होगा या लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस पे. सो इट्स विल बी लाइक इफ दिस इज द यूट्रस, हियर इज द ऑस. ओके, तो प्लेसेंटा कैसे प्रेजेंट होगा, ऑस के ऊपर ऐसे. गॉट इट? So this is a case of what? Placenta previa. Placenta previa findings. Okay? और जब आपको ऐसे प्लेसेंटा देखने को मिलेगा ऑन द इंटरनल ऑस, तो नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, दैट इज ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी. एंड ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी क्या है, दिस इज अ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस
for abnormally located placenta. So just write here, this is what, this is an investigation of choice for abnormally located placenta. Got it? Now ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी हमने क्यों की? अब आप बोलोगे मैम ट्रांस एब्डोमिनल में भी तो पता लग गया अगर ऑस के ऊपर प्रेजेंट है तो इट इज़ अ प्लेसेंटा प्रीविया, तो व्हाई वी डिड टीवीएस? सो हमने ट्रांसवजाइनल इसीलिए की ताकि हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता लग जाए, और सेकेंड कि एक्चुअल में इस प्लेसेंटा का कितना डिस्टेंस है ऑस से, ऑस के ऊपर पड़ा है बिल्कुल कि नहीं. ठीक है, तो 3 रीज़न है हमारे पास टीवीएस करने के. फर्स्ट, टू नो, टेल अस अबाउट, it tell us about what? Exact location. ठीक है. सेकेंड, फॉर हाउ मच डिस्टेंस प्लेसेंटा इज कवरिंग द ऑस, फॉर हाउ मच डिस्टेंस placenta covering the os. Got it? So इसीलिए we did transvaginal sonography. That's why we called it as what? Investigation of choice. नहीं तो फिर हम trans abdominal को ही investigation बोल देते. ठीक है? Now जब आपने trans abdominal sonography की in case of प्लेसेंटल अब्रप्शो, तो आपको क्या फाइंडिंग मिलेगी? ठीक है, सो लेट्स डिस्कस व्हाट फाइंडिंग ऑन टीएस मेक द डायग्नोसिस ऑफ अब्रप्शन. टीएस मेक्स finding of what? Abruption. Now this is the question. Now how you will answer this? अभी क्या क्या फाइंडिंग्स आपको मिलेंगी ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी पे? सो फर्स्ट विल बी, देयर विल बी रिट्रोप्लेसेंटल क्लॉट. वी हैव सेड दिस ना कि प्लेसेंटा अब्रप्शो में रिट्रोप्लेसेंटल ब्लीड होता है. तो अगर रिट्रोप्लेसेंटल ब्लीड हुआ तो देयर विल बी व्हाट? देयर विल बी ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन. सो जस्ट राइट रिट्रोप्लेसेंटल क्लॉट्स आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, ओके, रिट्रोप्लेसेंटल क्लॉट. और ये क्लॉट्स कहाँ होंगे? मेनली बिटवीन द प्लेसेंटा एंड द डेसिडुआ. सो क्लॉट्स present between placenta and decidua. Got it? Now second thing that you wanna see on transabdominal sonography is what? That is one sign which is called as jello sign. This is called as jello sign. Okay, now what is this jello sign? So ये जो jello sign है, this is a thickened placenta that shimmers with the maternal movement. जब भी मदर की मूवमेंट होगी ना तो आप देखोगे कि ये जो प्लेसेंटा है ना इस पे एक शाइनिंग सी आती है. ठीक है, सो जस्ट राइट इट डाउन. व्हाट इज दिस जेलो साइन? सो थिकेंड प्लेसेंटा, that shimmers with maternal movement.
So this is the jello sign. Now let's discuss about the classification of placenta previa and abruption. So first we'll discuss about the placenta previa classification. So placenta previa classification. Okay. Now अगर हम इसकी न्यू क्लासिफिकेशन की बात करें तो न्यू क्लासिफिकेशन में क्या आता है, देयर इज प्लेसेंटा प्रीविया विच इज overlying the internal os and second one is low lying placenta previa. Okay, so just discuss the new classification. So first is what, that is placenta previa which is covering the internal os. Here what is happening, placenta is covering internal os. The second classification of this new classification is what, that is low lying placenta. Low lying placenta. अब low lying placenta क्या होता है, when the lower edge of placenta is within the 2 centimeter of internal os. So अगर ये है हमारी यूट्रस, ठीक है, और ये है इंटरनल os, ठीक है,